once again take this opportunity to recall Indian Navy's glorious past, its legacy. Post independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes, several major challenges as well, which were seen both in structure and also on the operational front. It then reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces, that's the President of India. The maiden review of the Indian composite fleet was taken by our first Honorable President Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953. Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953, and since then, our, our maritime strength has never ever looked back. Something which started with the review of total of 30 ships and 6 aircrafts. They were reviewed in a display of might by the nascent Indian Army then. And as we bring to you the live visuals of the 12th review by the Honorable President of India, it's worth mentioning here that this is the third time that a review is being conducted on the east coast of India here in Visakhapatnam, with the last edition being the 2016 International Fleet Review. It's history in making, multitude of significance attached to the event, and we all are part of this history in making. In this edition, the President reviewed almost 60 vessels, included more than 50 aircrafts. And this being the 12th Fleet Review, also has a special significance, dear viewers, as it is also being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the nation as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Supreme Commander of the Armed Forces reviewed the naval fleet, comprising over 60 ships and submarines and 55 aircrafts. INS Sumitra also, we saw how it sailed through 44 ships lined up at an anchorage of Visakhapatnam. We saw the combination of ships from Indian Navy as well as Indian Coast Guard, from SCI and Ministry of Earth Sciences participating in this mega event. निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा और इसके अपने कई मायने हैं। हमने दीदार किया, हमने उन क्षमताओं को देखा, चाहे वो आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस वेला पनडुब्बी हो, चाहे वो आईएनएस दिल्ली हो, आईएनएस सुजाता, आईएनएस कमोता हो। इनका नाम बार बार हमारे जुबान पर आता है क्योंकि ये नौसेना की क्षमताओं को सिर्फ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने युद्धपोतों का निर्माण खुद अपनी क्षमता के बल पर कर रहे हैं और इस क्षमता तक पहुंचने में हमें एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज जैसा कि आईएनएस विशाखापट्टनम हमारे नवीनतम डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसे पिछले साल ही नौसेना में कमीशन किया गया, उसमें ये क्षमताएं हैं जिसमें हमने देखा 75% से ज्यादा तमाम सामग्री स्वदेशी है, जो हमारी क्षमताओं को सामने रखती है। आज हम अपने बल पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आईएनएस वेला उसका एक उदाहरण, जिसका दीदार भी हमने किया, पूरी दुनिया ने किया। We also saw the Honorable President reviewing the Indian Naval Air Arm in a display of spectacular flypast by several helicopters and fixed-wing aircraft. In the final stage of the review, we saw how a mobile column of warships and submarines steamed past the presidential yacht. Rare display also showcased the latest acquisitions of the Indian Navy. Furthermore, several enthralling waterfront activities that you saw live on your screens a while back, including parade of sails, colorful sails,
We saw search and rescue operations, live demonstrations at seafront. We also saw aerobatics by our Hawk aircrafts and water para jumps by the elite Marine commandos. All that brought to you live and exclusively by Doordarshan cameras, spread across Bay of Bengal on vantage positions, which also included 5 ships, hilltops, and much more. दूरदर्शन देश के लोक प्रसारक की भूमिका में सदैव तत्पर रहा है, मुस्तैद रहा है और आज का दिन 12वें प्रेसिडेंट ट्रीट रिव्यू का मौका बंगाल की खाड़ी में नए आयाम स्थापित करता हुआ अगर हम इस महाआयोजन के आप तक दृश्य पहुंचाने और सुचारू प्रसारण की बात करें तो और 5 जो जहाज हैं उन पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोटा, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस जलाश्व पर, जहां से न केवल प्रेसिडेंट यॉट के दृश्य आपको दिख रहे थे बल्कि प्रेसिडेंट यॉट पर जो कैमरे लगाए गए थे उनसे उन सभी पोतों का अवलोकन माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, जिन पर डेक पर कैडेट मौजूद थे और जो पूरे गौरव के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ, जय घोष के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कभी मुस्कुरा कर, कभी गर्व के साथ, गौरव के साथ उनके स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है भारतीय नौसेना के लिए। और अगर हम कुछ कवि के शब्दों में उसे व्यक्त करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के अवाम का है। तो ये है मौका 12वें प्रेसिडेंट ट्रीट रिव्यू का, जो हमारी रगों में रक्त के संचार को तीव्र कर देता है और देश प्रेम की भावना को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सहायक है। आईएनएस सुमित्रा अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर है और हम उसके ठीक आगे देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलम में T-39, T-40 तीव्र हमलावर पोत, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सुमित्रा की कमान संभाली है कमांडर आशीष मित्तल। INS Sumitra, presidential yacht, on your screens, indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa Shipyard, commissioned in 2014, accomplishing several successful missions in her service life, and the most notable, worth mentioning, anti-piracy patrol in Gulf of Aden in 2015, wherein she was diverted for Operation Rahat. Operation Rahat, a non-combatant evacuation operation in war-torn Yemen. INS Sumitra is presently commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumitra is also, as we see, is being led by fast attack craft Tango, T-39 and T-40, followed by Indian naval ships Sumedha and Savitri, all of which are offshore petrol vessels like INS Sumitra. Together on your screens, they form the presidential column. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय फ्लीट रिव्यू के बाद अब डॉकिंग के लिए नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय तक पहुंचते हुए। और खास बात यह है कि जब आप शिवेंद्र और सकल जब आप नौसेना के पूर्वी कमान का दौरा करेंगे, देखेंगे तो एक जो पंक्ति है वो बार बार आपकी नजरों से गुजरती है। वो पंक्ति है हर काम देश के नाम, यानी पूरा समर्पण देश की सुरक्षा के लिए। और शायद इसीलिए मैं ये पंक्तियां जरूर दोहराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। और आप ये तस्वीरें देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीरें। एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको दिखेंगे। भारत के सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल, और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारे सैन्य बल भी हमारे सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भौगोलिक परिदृश्य, हमारे जो तमाम विशाखापट्टनम में स्थित जो तमाम इमारतें हैं, पूजा स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं, वो भी इसी बात को सामने रखते हुए। और सामने आप देख रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम ढांचे जहां पे नौसेना की शक्ति का
एक तरह से निर्माण होता है, युद्ध पोतों का निर्माण होता है, वाणिज्यिक पोतों का निर्माण होता है। मैं कुछ पंक्तियां जरूर ऐसे मौकों पे गर्व से भरी, जो पंक्तियां, जो कार्य, जो गतिविधियां हमने देखी हैं, जिसको परिभाषित करती हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छू ना पाए कोई भी। माँ को देकर खून माँ का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। और शायद इसीलिए नौसेना कहती है, हर काम देश के नाम। Har Kaam Desh Ke Naam. And OP and Shivendra and Captain Sham Kumar, there seems to be absolutely no doubt that the 21st century is the and will be the century of the seas for India, and that the seas will remain a key enabler in her global resurgence. And this is the history in making, the story of India's growth, its global resurgence, especially in the context of strategic maritime might and prowess. As we speak, for this, the Indian Navy remains all time combat ready, credible, cohesive, and future proof force. In fact, as I also get in some remarks by Captain Sham, we've seen the last decade how it has witnessed India's dependence and reliance on her maritime environment, which we have seen expanding substantially as her economic, military, and technological strength has grown multifold. Her global interactions have widened, and her national security imperatives and maritime security interests have stretched gradually beyond the Indian Ocean region. And what we see on our screens, viewers of Doordarshan, is the live example of India's maritime strategic might. The maritime strength of the country is backed up by the port trusts, the shipbuilding strength, and today we are proud to display the might of shipbuilding capabilities of the country. Sumitra, Sumedha, Savitri, Vishakhapatnam, Sayadri, Satpura, Sivalik, corvettes, LSTs, tankers, and the aircraft carrier in making at Cochin Shipyard Limited, the Hindustan Shipyard Limited, the Mazagon Dock Limited, GRSC, all this is backing up the strength of the maritime capabilities of the country. The Indian Navy today, more than 150 vessels, 300 aircraft, and 67,000 plus active personnel is gearing up to take challenges at far-flung areas at sea. Indian Ocean is being visited by many navies. The Indian Navy, with its diplomatic reach and the concern for the security of the islands and the choke points, strategic areas of interest, is day by day growing for taking a posture which will be befitting our interests tomorrow. The exercise Malabar, the exercise Milan, which is going to take place at Visakhapatnam just 2 to 3 days from now, are all indicative of these developments. Today, we see Navy operating in the sea lift capabilities, we see projection capabilities, we see it as a HADR, disaster relief operations in areas of interests, and nuclear deterrence as the third strike capability or nuclear trident. So we have grown from strength to strength. And I think today the nation has seen the might of the maritime strength of the country in terms of Indian Navy, the Shipping Corporation of India, the Coast Guard ships, and the strength of ports, harbors, and the shipbuilding industries. भारतीय नौसेना जिसने 75 वर्षों का जो समय रहा है, उसमें तमाम
नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो युद्ध के समय की स्थिति हो या युद्ध से परे की स्थिति हो, चाहे वो राहत या बचाव अभियान हो, या फिर अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए और उसमें स्वदेशीकरण का समावेश हो, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उसे मूर्त रूप देने की बात हो, भारतीय नौसेना ने हमेशा ही सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम जो कि मेजबानी कर रहा है 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की, ये बेड़ा समीक्षा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अब अपने अंतिम चरण में, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, और अब इस समय स्थल सीमा जो है इस शिप की, प्रेसिडेंशियल कॉलम की, उसकी ओर बढ़ रहा है आईएनएस सुमित्रा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो नेवी का, नौसेना के जंगी जहाजों का जो प्रदर्शन था, भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों का जो प्रदर्शन था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज उसमें शामिल थे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में, उसके उन्नत जहाजों का भी प्रदर्शन आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अगर कहा जाए दो नगीने हैं विशाखापट्टनम में तो गलत नहीं होगा। पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर आर्थिक दृष्टि से भी बात की जाए। और इंडियन मैरीटाइम जोन में जो भूमिका निभाता है ये बंदरगाह, वो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में सिंधिया स्टीम और नेविगेशन कंपनी के अंश के रूप में परिचालित हुआ था और आज सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। और उसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आईएनएस सावित्री शान से आगे बढ़ता हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अंग बनते हुए आज बहुत ही शानदार अंदाज में जिसका परिचालन हुआ, और प्रेसिडेंट यॉट ने एक के बाद एक जो पोत तैनात थे समुद्र में, स्टैटिक शिप्स, उनको पार किया और परंपरागत अंदाज में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब से थोड़ी देर पहले वो मौका भी था इस फ्लीट रिव्यू का जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन किया और एक बार फिर से वो भरोसा मजबूत हुआ हमारे सैन्य बलों पर, और एक बार फिर से भविष्य की चुनौतियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में आजादी का अमृतकाल कहते हैं, यानी आज से 25 वर्षों बाद भारत कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या हम अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे और भारत एक विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा, जहां दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है। और इस अमृतकाल में हम अपनी तमाम क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए आज का फ्लीट रिव्यू इतिहास का वो हिस्सा जो हमारे गौरव के इन पलों को बढ़ाता है, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गौरव और ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। और हमें यह समझना होगा कि नौसेना क्यों बेहद जरूरी है, क्यों बाकी सैन्य बलों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्थिक हितों को नौसेना न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि आश्वस्त करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय समुद्री सीमाएं जो 7,500 किलोमीटर से लंबी हैं, और इसके अलावा हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40%, रणनीतिक महत्व के खनिजों का 65%, प्राकृतिक गैस का 31% भंडार पूरी दुनिया का, और इससे भी आगे बढ़कर पश्चिम एशिया से हर साल करोड़ टन तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उस सुरक्षा के एहसास को आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है कि जब तक हमारी नौसेना मौजूद है हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी ओर आंख नहीं उठा सकता। और अब ये दृश्य आप देखें
जब प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर, राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेसिडेंट यॉट अब यहाँ पे डॉक होगा यहाँ पे, और फिर से एक बार हम देखेंगे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जो तमाम गतिविधियां हैं वो उसके गवाह हम बनेंगे। The precise navigational skill of the captain of the warship and the navigating officer is at display. The ship will be berthed alongside in few minutes from now. As you see, the national color flying in the foreyard of the ship and also on the main mast, indicating the president, the supreme commander of the armed forces, is at sea. The Chief of Naval Staff, the Raksha Mantri, the Commander-in-Chief of Eastern Command, and various dignitaries on board the warship of the President's yacht, now coming alongside after reviewing the fleet. The 150-man guard and ceremonials of Presidents coming alongside is going to be observed soon. The ship has been modified for this day, and deck, the awnings, which is a retractable one, is being specially made for the day. The fleet review was also followed by the release of a special first day cover and a commemorative stamp by the Honorable President in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Minister of State for Communication Shri Debasingh Ajay Chauhan. Today, we saw a mighty display showcasing the latest acquisitions of the Indian Navy. Gun salute is being fired. Honorable President of India receiving 21 guns live on your screen. The presidential yacht will now secure alongside and the Honorable President will disembark now. राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में राष्ट्रपति महोदय जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और आज एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल नौसेना के इतिहास में जुड़ गया, भारतीय सैन्य बलों के इतिहास में जुड़ गया, भारत के इतिहास में जुड़ गया, जो ये बताता है कि हम सुरक्षित हैं। आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक हम आश्वस्त हैं। 12वां फ्लीट रिव्यू, तमाम गणमान्य लोग आज इस मौके के गवाह बने और टेलीविजन के जरिए, हमारे सीधे प्रसारण के जरिए पूरी दुनिया में लोग इसके गवाह बने। यहाँ मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की बात करें तो आज हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्व भूषण हरिचंदन जी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, और तो इसके साथ साथ तमाम गणमान्य लोग, उन्होंने आज हमारी नौसेना की इस क्षमता का सीधा दीदार किया। We also saw ships at Anchorage ceremonially dressed, adding much charm to these spectacular visuals from Visakhapatnam, Shivendra. Overall, with various naval flags in full regalia during the day and during the morning session today. In fact, we must tell our viewers that they were illuminated from sunset to midnight on 19th and 20th of February. And this was something which was witnessed by the citizens of Visakhapatnam from the beachfront. Concluding moments of the 12th President's Fleet Review. National emblem, the President's presence on board the ship, depicting the might of the country at sea and the full naval capability at display. In few moments from now, the President will disembark from the ship and the fleet review will come to an end. The maritime capabilities of the country was a display. The aircraft which participated were from various air stations of the country. INS Dega at Visakhapatnam, which is housing the Hawk aircrafts. The MiG-29 from Goa, the Sea King helicopters from Mumbai, the Kamov from Goa, and so on. The various ships also came from various harbors from Cochin and Mumbai, Karwar, etc. And they all were rehearsing day and night for this day to be successful and very, very worth watching. Maneuvers that we saw during the entire review by the President was really a splendid display of the strength of the maritime capabilities of the country. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईएनएस सुमित्रा से प्रस्थान करेंगे, उतरेंगे। आज का दिन परिचायक है भारतीय नौसेना के स्वर्णिम इतिहास का। इतिहास जो गौरव गाथा है भारतीय नौसैनिक के शौर्य की, स्वाभिमान की, त्याग और बलिदान की। क्योंकि त्याग न होता यदि जीवन में उल्लास न होता, मानव मानव ही रह जाता, मानव का इतिहास न होता। नौसेना ने उस इतिहास के महान शिल्पकारों को आज का ये महाआयोजन समर्पित किया है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के रूप में। और निश्चित तौर पर जो कुल मिलाकर अब तक 11 फ्लीट रिव्यू इससे पहले आयोजित हुए थे, उनमें आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वार्तालाप करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, और अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद डेक पर मौजूद, प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद विशिष्ट अतिथि गणों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। आज के इस खास दिन को सभी ने अपनी यादों में पिरोया है और भारतीय नौसेना की जो सामरिक शक्ति है, जो उन्नत तकनीक का समावेश है, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उसका अवलोकन किया है। और आज का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू निश्चित तौर पर एक और इशारा करता है कि भारत का वर्तमान उज्जवल है और भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल इन भारतीय नौसेना के जोशीले जांबाजों और जंगी जहाजों के देखरेख में। अभी पिछले रक्षा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसकी बात करें शिवेंद्र और सकल, तो हम देखते हैं कि भारत किस तरह से लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय जो तमाम निर्माण की इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, वो लगातार समृद्ध हो सकें।
और हम स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में बदले जिसमें भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर भी, तकनीकी प्रगति के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी का उदाहरण है। और मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और आज ये राष्ट्र पुरुष ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सशक्त होकर उभरा, ऐसा लगता है। और उसकी एक बानगी हमने देखी आज फ्लीट रिव्यू में, जब हमने उन जहाजों, उन युद्धपोतों के दर्शन किए, उनकी क्षमताओं को देखा जो बताती हैं कि हम अपने दम पर आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए शायद ये कहना होगा कि आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, शब्द लिखें, आवाज लिखें, आओ एक नया आगाज लिखें, अजर लिखें, अमर लिखें, आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, खास लिखें और आम लिखें, स्वर्णिम भारत का पैगाम लिखें। Live with Minus Sumitra. Concluding moments of the 12th edition of the President's Fleet Review. Honorable President, Honorable Raksha Mantri, and various other dignitaries are going to be disembarking from INS Sumitra. And the Fleet Review, needless to say, OP and Shivendra, how beautifully it has symbolized our Navy's loyalty, allegiance to the nation, and strengthening bonds between the sailors and the state. And to conclude, I'm reminded of these few lines from Kelly Roper, and this is our dedication to our men in uniform. A call to duty is sent out, and the strong and the brave reply. They do it for love of country, so there's never a need to ask why. They leave behind all that they love, their families, their homes, and their lives. Because to preserve these precious things is the goal for which each soldier strives. So God bless our troops, the courageous women and men who fight to make sure the bells of freedom peal again. Nostalgic moment for me as a veteran naval officer. Same jetty, same place. Many years ago, I was inducted into the Navy as a naval pilot and started my career of naval aviation at INS Dega, which was Naval Air Station those days. And now, the Eastern Naval Command, starting from a very noble beginning of INS Sarkar to the headquarters of Eastern Naval Command, has come a long way. Ships, aircrafts, and submarines, all together, three dimensions were at display today, and we have seen the naval capabilities backed up by the strength of our shipbuilding capabilities. The naval operations are far at sea. The coastal defense, the surveillance at sea by the maritime patrol aircrafts, all are constantly keeping our islands and our exclusive economic zone, which extends 200 nautical miles from the coastline, a vast area of interest for the country, which needs to be constantly guarded and kept under surveillance. These are being done by the naval ships, coast guard ships, and also the merchant ships, which remain our inputs for gathering and acquiring maritime domain awareness. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने साथ बहुत सी यादें छोड़ करके जा रहा है और तमाम जो नौसैनिक इस फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिसमें सेलर्स शामिल हैं और जिसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन को कामयाब बनाने में, सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन सभी के लिए ये एक यादगार मौका है, अविस्मरणीय अवसर है, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और सफलतापूर्वक परिणति पर पहुंचता हुआ 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू
विशाखापट्टनम को तीसरी बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की मेजबानी करने का। और वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री पुरुषोत्तम रूपाला आज इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथिगण, विदेशी राजनयिक सभी आज के इस महाआयोजन का हिस्सा बने हैं और सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। भारतीय नौसेना की जो गौरवशाली परंपरा है वो आज बड़े शानदार अंदाज में विशाखापट्टनम में निभाई गई है। और समुद्र की लहरों को चीरते हुए जब जहाज, जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं तो देशवासियों में उत्साह का संचार करते हैं कि हमारी सीमाएं, समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं और इसीलिए हम चैन के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारीगण आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, वो डेक पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति महोदय का जो काफिला है, जो कैवलकेड है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद तैयार है। माननीय राष्ट्रपति महोदय कुछ ही समय के बाद प्रस्थान करेंगे INS सुमित्रा से। Just to recall, Honorable President of India, the Supreme Commander of Armed Forces, reviewed the naval fleet comprising over 60 ships and submarines and almost 55 aircrafts. The live visuals of which were brought to you by Doordarshan cameras spread across Bay of Bengal on various ships, 5 ships, and numerous vantage positions. This is the live broadcast and the concluding moments of the 12th Fleet Review, and has a special significance to reiterate that it is being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the country as Azadi Ka Amrit Mahotsav across the nation. Viewers, in a moment from now, as we stay with these live visuals, Honorable President will be disembarking along with the other dignitaries. The INS Sumitra, finally, in a moment, bringing curtains down to the 12th edition of President's Fleet Review. The President, when he embarked on the presidential yacht, it sailed through 44 ships supremely lined up at anchorage of Visakhapatnam. All that was brought to you live by Doordarshan on your screens as the First Lady disembarks INS Sumitra. Honorable President, The ship is considered a lady and she is given the regard of a lady. Ship's husbandry is the maintenance of the ship, that is called. And when the president disembarks, you see the piping of the side by the sailors and the commanding officer, the chief of naval staff, the commander-in-chief Eastern Naval Command are saluting the president when he is walking through the gangway of the ship. और अब राष्ट्रपति रवाना होते हुए प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अब एक अंतिम चरण में अब हम हैं। राष्ट्रपति महोदय वापसी कर रहे हैं और इस समय हमें याद रखना होगा कि ये हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण और उसके साथ साथ हमारे देश के सशक्तिकरण की अनवरत प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में अब से कुछ दिनों बाद अगले 25 तारीख को मिलन अभ्यास, जिसमें करीब 50 देशों की नौसेनाएं यहीं नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और बंगाल की खाड़ी में जमा होंगे। और वो एक उस प्रक्रिया के तहत भी संदेश यही होगा कि हमारी सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया, हमारे सैन्य बलों के सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें सौहार्द और सामंजस्य और सहयोग की एक कभी न रुकने वाली परंपरा भी शामिल है। आज संदेश विशाखापट्टनम के इस तटीय शहर से यही पूरी दुनिया को गया है कि कोई भी चुनौती हो, हम तैयार हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हम मुस्तैद हैं। हमारे सैन्य बल, हमारी नौसेनाएं मौजूद हैं और नौसेना अपने तीनों आयामों के जरिए
लगातार सशक्तिकरण की प्रक्रिया को, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। चाहे समुद्र का तल हो या समुद्र के नीचे की चुनौतियां हो या फैला हुआ आकाश हो, नौसेना तत्पर और तैयार है। यह आजादी का अमृतकाल है दर्शकों, और हम लगातार कुछ नया और बड़ा लिख रहे हैं। और ये कहना है कि नए भारत नया इतिहास लिख रहा है। जन गण मन संग वंदे मातरम गान लिख रहा है। मर्यादा का राम, कृष्ण का गीता ज्ञान, कुरुक्षेत्र संग्राम